A very good morning to all my loving students. Class first, today we are going to start from your writing part. Okay? So your chapter name is The Food We Eat. We are talking about food. Food means khana. Food makes us grow to stay healthy and energetic, right? And food gives us energy to work and play. We eat different kinds of food, okay? Milk, fish, eggs and pulses are for your growth, okay? Fruits and vegetables keeps us healthy. And rice, sugar, butter, roti and bread gives us energy. And where does food come from? The food we eat come from plants and animals. We get fruits, vegetables and pulses from plants. We get milk, egg, meat from animals. Ice cream, butter, ghee, cheese, curd are made from milk. Okay? And how many meals we eat in a day? We have 3 meals in a day. We have breakfast in the morning. We have lunch in the afternoon. We have dinner in the night. Okay? And we need water. Why we need water? Because our body needs water. The food we eat want water for digestion. And we must drink 6 to 8 glass of water. Okay? Good eating habits. You know what is good eating habits? Main is take much as only as you can finish. Never waste food. कभी भी हमें इतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सके. हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए फूड को. ओके? एंड द गुड ईटिंग हैबिट इज ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड. ईट योर मील्स एट द सेम टाइम एवरी डे. ईट विथ योर माउथ क्लोज्ड. Eat slowly. Chew your food well. Wash your hands before and after your meals. Rinse your mouth after meals. Okay? So shall we start from your writing part today? Yes. First question is, let us answer on your page number 10. On your page number 10, first one is write the correct answer, and you have to tell me the answers because I explained you full chapter, right? First one is, when we are hungry, we play outdoors, have food or draw. हमें जब भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? बाहर खेलने जाते हैं या ड्राइंग करते हैं या खाना खाते हैं. जब हमें भूख लगती है हम खाना खाते हैं. तो राइट आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर ए एंड द फर्स्ट आंसर इज बी, हैव फूड. उसके आगे हमें राइट मार्क पुट करना है. ओके? कैन यू सी ऑन द ब्लैक बोर्ड? You have to mark the sign in your EVS book. Okay? Second one is, these foods help us to grow. हमने कितने टाइप्स के पढ़े थे? काइंड्स पढ़े थे अपने फूड के. 3 काइंड्स थे. फर्स्ट इज बॉडी बिल्डिंग फूड जो हमें ग्रो करने के लिए हेल्प करती है. सेकेंड इज प्रोटेक्टिव फूड जो हमें फाइट करने के लिए हेल्प करती है डिजीज से. थर्ड वन इज एनर्जेटिक फूड. एनर्जेटिक फूड एनर्जी देती है टू वर्क एंड प्ले. सो इन दिस क्वेश्चन दे want to tell this food help us to grow. हमें ऐसा फूड बताना है जो हमें ग्रो करने के लिए हेल्प करता है. तो मिल्क एंड पल्सेस हेल्प करता है. मिल्क और पल्सेस किसके लिए होता है बेटा? Yes.
ate in the afternoon. Third answer is B, C वाला lunch, L-U-N-C-H, lunch, L-U-N-C-H, lunch. Fourth one is we must chew our food with our, हमें खाना कैसे खाना चाहिए? माउथ क्लोज्ड करके, अपना मुंह बंद करके खाना खाना चाहिए. तो B is your right answer. Mouth closed. M-O-U-T-H, mouth. C-L-O-S-E-D, mouth closed. So these four are the right answer of your question number A. First is when we are hungry, we have food. This food help us to grow. The answer is milk and pulses. In the afternoon, we have lunch. And in the morning, we have breakfast. In the evening, we have dinner. Last is we must chew our food with our mouth closed. Eat slowly with your mouth closed. Now, we are going to write answers of your question number B. So, shall we start? Yes. B question is answer these questions. This is your main question. The first one is why do we need food? हमें food की जरूरत क्यों है? Food, we need food to grow, to stay healthy and energetic. हमें food की जरूरत है grow करने के लिए, energy के लिए और healthy रहने के लिए. So right answer is answer number 1. We need food. We need food to grow, to stay healthy, S-T-A-Y, stay healthy, and energetic. Okay, this is your right answer of first question. We need food. हमें food की जरूरत है grow करने के लिए, to stay healthy, healthy रहने के लिए और energetic रहने के लिए. So we need food to grow, to stay healthy and energetic. Okay, this is your first answer. Now second. So what is your second question? Name 3 food items we get from plants. Plants से हमें ऐसे कौन से food items मिलते हैं? हमें कितने नाम बताने हैं? 3. तो right answer is we get, हमें मिलता है we get fruits, vegetables, V-E-G-E-T-A-B-L-E-S, vegetables. We get fruits, vegetables, and the last is pulses. And pulses, P-U-L-S-E-S, pulses. We get fruits, vegetables, and pulses from plant. From plant, P-L-A-N-T. आपको बेटा क्या याद करना है इस आंसर में? Only these 3 spellings: fruits, vegetables, and pulses. This is your main spelling of your question number 2. In this question, you have to learn only these spellings: F-R-U-I-T-S, fruits, V-E-G-E-T-A-B-L-E-S, vegetables, P-U-L-S-E
वाटर क्यों जरूरी है? जो खाना हम खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने के लिए वाटर इज रिक्वायर्ड। ओके, सो राइट आंसर इज WATER, वाटर। वाटर हेल्प्स, HELPS, हेल्प्स टू डाइजेस्ट। डाइजेस्ट की स्पेलिंग क्या है बेटा? DIGEST, डाइजेस्ट द फूड। THE, द FOOD, फूड। फूड की स्पेलिंग क्या है? FOOD, फूड। We eat, जो हमने खाया है उसे डाइजेस्ट करने के लिए वाटर हमें हेल्प करता है। वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट, जो खाना हमने खाया है उसे डाइजेस्ट करने के लिए वाटर हेल्प करता है। तो दिस इज योर आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट इज वी नीड फूड, हमें फूड की जरूरत है ग्रो करने के लिए। GROW, ग्रो। टू स्टे हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए। STAY, स्टे। HEALTHY, हेल्दी। AND, एंड एनर्जेटिक। ENERGETIC, एनर्जेटिक। अच्छा, एक काम करते हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं अपना आंसर यहाँ तक एंड कर लेती हूँ फर्स्ट वाला। तो आपको इतना लर्न नहीं करना होगा, आपको बस क्या लर्न करना है बेटा? वी नीड फूड टू ग्रो एंड टू स्टे हेल्दी। दिस इज मच फॉर यू, राइट? आपके लिए इतना ठीक है, आप छोटे हो अभी तो आप इतना सा लर्न करो, आगे आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो आपका फर्स्ट आंसर क्या हो गया? वी नीड फूड टू ग्रो एंड टू स्टे हेल्दी। ग्रो करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए फूड हमें जरूरत होती है, फूड की हमें जरूरत होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर इज वी गेट, हमें मिलता है प्लांट से क्या मिलता है? 3 फूड आइटम्स मिलते हैं। क्या है? फ्रूट्स। फ्रूट्स आप खाते हो, फल, वेजिटेबल्स, सब्जियां। पल्सेस, दाल। FRUITS, फ्रूट्स। VEGE, वेजी। TABLES, वेजिटेबल्स। PULSES, पल्सेस फ्रॉम प्लांट। किससे मिलता है ये सब? प्लांट से। तो प्लांट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आपको एज इट इज यहाँ इसकी स्पेलिंग लिखनी है। ओके, आपको मेन स्पेलिंग किसकी लर्न करनी है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड पल्सेस। ओके, आंसर नंबर थर्ड इज वाटर। व्हाई डू वी नीड वाटर? हमें वाटर की क्यों जरूरत होती है? जैसे हमारे लिए खाना जरूरी है वैसे हमारे लिए पानी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने के लिए वाटर इज नेसेसरी। तो राइट आंसर इज वाटर। WATER, वाटर। HELPS, हेल्प्स। TO2, डाइजेस्ट। DIGEST, डाइजेस्ट द फूड। THE, द फूड। FOOD, फूड। We eat, हमने जो खाना खाया है उसे डाइजेस्ट करने के लिए वाटर हमें हेल्प करता है। चलो, ये 3 आंसर्स आपको लर्न हो जाएंगे बेटा। अब कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, आती है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो फोर्थ वाला स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा? रीड करते हैं। राइट डाउन 3 गुड ईटिंग हैबिट्स। आपको इस क्वेश्चन में क्या लर्न करना है? 3 गुड ईटिंग हैबिट्स, अच्छी आदतें खाने की। तो क्या सिखाई थी मैंने? एक तो वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर योर मील, यही था। ये आपने लिख लिया बेटा, नोट डाउन कर लिया? रहने देती हूँ आपके लिए। चलो, तो राइट हमें क्या करना है? राइट डाउन
हैबिट्स, हमें 3 गुड ईटिंग हैबिट्स बतानी है। हमने बहुत सारी गुड ईटिंग हैबिट्स पढ़ी थी, उसमें से मैम ने आपके लिए 3 निकाली है जो आपके लिए बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर 4 इज फर्स्ट, नेवर वेस्ट फूड। ये आपकी गुड ईटिंग हैबिट्स है, नेवर वेस्ट फूड। हमें कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना है। नेवर मीन्स कभी नहीं, NEVER, नेवर, WASTE, वेस्ट, फूड, खाना, FOOD, फूड, नेवर वेस्ट फूड। दिस इज योर फर्स्ट गुड ईटिंग हैबिट्स। सेकेंड इज eat fresh food, EAT, eat means खाना, fresh food, FRESH, fresh, FOOD, food, eat fresh food। हमें जो खाना रहता है वो कैसे खाना चाहिए? फ्रेश। गंदा खाना हम कभी खाते हैं? हमारी मम्मी खिलाती है हमें, कैसे पहले वॉश करती है, फिर वो फ्रेश होता है तो आपको देती है, नहीं तो वो देती है आपको? नहीं देते हैं बेटा। मार्केट से जैसे लाते हैं पापा आपके, मम्मी क्या करती है? उनको वॉश करती है। तो ये भी आपकी गुड ईटिंग हैबिट्स में कि आपको भी वॉश करके कोई भी चीज खानी है। ठीक है, विदाउट वॉश आपको उसे नहीं खाना है। तो ईट फ्रेश फूड, वो फूड अगर फ्रेश है तभी खाना है। थर्ड गुड ईटिंग हैबिट इज ईट स्लोली। हमें स्लोली, धीरे धीरे खाना चाहिए। जल्दी जल्दी खाने से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। EAT, SLOWLY, स्लोली, EAT, SLOWLY, स्लोली, ईट स्लोली। हमें खाना कैसे खाना चाहिए? स्लोली, आराम से, क्योंकि हमारे पास बहुत खाना है। हम जल्दी खा के क्या करेंगे? तो हमें आराम से खाना खाना है और फ्रेश फूड खाना है, और फूड को वेस्ट कभी नहीं करना। नेवर वेस्ट फूड, ईट फ्रेश फूड, ईट स्लोली। तो EAT, ईट, FRESH, फ्रेश, FOOD, फूड। फूड की स्पेलिंग हो गई लर्न बेटा, नेवर वेस्ट फूड। वेस्ट की स्पेलिंग WASTE, वेस्ट। ओके, वेस्ट नहीं करना। क्या नहीं करना? फूड को, FOOD, फूड। नेवर की स्पेलिंग NEVER, नेवर, नेवर वेस्ट फूड। ईट फ्रेश फूड, ईट स्लोली। ओके, स्लोली स्पेलिंग SLOWLY, 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 slowly. So here your 4 question is completed. Yes, ये आपके मेन क्वेश्चन आंसर्स आपके कंप्लीट हो गए। ये 4th वाला आप नोट डाउन करो, उसमें आपको 3 पॉइंट्स लिखने होंगे। मैंने जैसे लिखे थे वैसे आपको लिखने हैं 1 2 3 करके, और तीनों पॉइंट आपको लर्न करना है। ठीक है, कुछ भी आपको डिफिकल्टी आती है यू कैन आस्क मी। अब सी है बेटा, थिंक एंड आंसर। योर मेन क्वेश्चन इज थिंक एंड आंसर। पापा सेज Murali needs energy to take part in a race. Name any 3 food items that Murali should eat. आपका क्वेश्चन पूछा है पापा सेज Murali। मुराली एक बॉय का नाम है, उसको क्या करना है? पार्ट लेना है। किसमें? रेस में। तो पापा ने उसको क्या बोला कि आपको एनर्जी की जरूरत है। पापा सेज Murali नीड्स एनर्जी। पापा ने मुराली को बोला मुराली नीड्स एनर्जी टू टेक पार्ट इन अ रेस। रेस में पार्ट लेने के लिए मुराली को किसकी जरूरत है? एनर्जी की। ऐसा किसने कहा? पापा ने। नेम एनी 3 फूड आइटम्स दैट Murali शुड ईट। ऐसा बोला है कि हमें ऐसे फूड आइटम्स लिखने हैं जिससे मुराली को क्या हो? एनर्जी मिले। तो ऐसे कौन से फूड आइटम्स है जिससे
ये आपके मेन थ्री क्या है, फूड आइटम्स है। और मेन स्पेलिंग से जो आपको लर्न करनी है, राइस की स्पेलिंग RICE राइस, BREAD ब्रेड, BUTTER बटर, टू गेट एनर्जी। क्यों जरूरी है ये खाना? एनर्जी के लिए। एनर्जी उसको क्यों चाहिए? क्योंकि वो रेस में क्या ले रहा है, ले रहा है, पार्टिसिपेशन है ना उसका रेस में, तो उसको ये सारी चीजें खाने से एनर्जी मिलेगी। तो मुरारी नीड्स राइस, ब्रेड, बटर टू गेट एनर्जी। आपको अगर मुरारी लर्न नहीं हो तो आप ऐसा लिख सकते हो, he needs। क्या लिख सकते हो? he needs। तो ये आपका आंसर छोटा भी हो जाएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा, आप मिस्टेक नहीं करोगे। he means मुरारी के लिए हमने he यूज करा है, क्योंकि मुरारी की स्पेलिंग बहुत बड़ी है, आपको क्वेश्चन में दे रखी है, पर आप उतारने में भी मिस्टेक करते हो। अभी आप स्टार्टिंग है, छोटे हो, इसलिए मैंने क्या लिखवा दिया, he, he से हमें समझ में आ रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो he means मुरारी needs rice, bread, butter to get energy। ये टू गेट एनर्जी में बेटा कहाँ लिखा है आपको? क्वेश्चन में। एनर्जी स्पेलिंग दे रखी है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। आपको लर्न क्या करना है? he needs rice, bread, butter to get energy। ओके, ये आपका आंसर नंबर सी है। क्वेश्चन सी का आंसर है थिंक एंड आंसर। चलो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक एक्टिविटी दी थी आपको लर्न, कुछ याद है आपको? एक एक्टिविटी मैंने क्या बोला था आपको घर जाके क्या करना है, सॉरी घर पे आपको क्या बनाना है, पता है ना आपको? किसने बनाया? आपने बनाया। मजे आए ना खाने में? एंजॉय करा आपने? क्या क्या करा था, कैसे बनाया बताओ मैम को। 2 स्लाइस लिए थे आपने ब्रेड के, 1 स्लाइस पे क्या करा था, जैम स्प्रेड करा था, और अदर स्लाइस से उसको कवर कर दिया था, और आपका सैंडविच रेडी। आपको मजे आए होंगे खाने में, है ना? टेस्टी लगता है ना? आपको बनाने में भी मजे आए और खाने में भी आए। बनाने में क्यों आए? क्योंकि आपने अपने हाथ से बनाया और आपने खुद ने खाया, राइट? तो आपने ये एक्टिविटी करी है तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं आपको और भी बहुत सारी एक्टिविटी देने के लिए सोचूंगी ना, नहीं तो आप ये नहीं करोगे तो मैम फिर कुछ भी नहीं दूंगी। चलो, अब ई वाला क्वेश्चन में पजल है बेटा। पजल आपको क्या करना है उसमें, फाइंड द नेम्स ऑफ 8 फूड आइटम्स इन द वर्ड पजल बिलो। आपको बेटा पजल दे रखा है, ये पजल है, उसमें आपको क्या करना है बेटा, 8 फूड आइटम्स फाइंड करने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 1-2 बता रही हूँ बेटा, मैं आपको इसके आंसर्स दे दूंगी, पर आपको ये पजल अगर आप मन से करते हो, खुद से करते हो, मेरे को ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि इसमें क्या है बेटा, पजल है। पजल आप सॉल्व करोगे, आपको एक तो स्पेलिंग भी लर्न होगी और फूड के आइटम्स के बारे में नॉलेज भी इनहेंस होगी, राइट? तो इसलिए मैम आपको कैसे करना है वो समझा देती है। घर पे आपको होमवर्क में आंसर्स मिल जाएंगे, तब तक आपको कोशिश करना है, मेरे ये लेक्चर देखने के बाद आप बुक में देखना, मम्मी के साथ में लेके बैठना, कोशिश करना कि आपको क्या मिले, फूड आइटम्स मिले, उस पे आपको पजल्स बनाना, ठीक है? एक आपको दे रखा है बेटा BPULSES, ऐसे दे रखा है पजल। तो आपको क्या करना है, इसमें पजल को फाइंड आउट करके देखो, यहाँ किसकी पल्सेस की स्पेलिंग दिख रही है मुझे, PULSES, पल्सेस। किसकी स्पेलिंग आ रही है बेटा, पल्सेस की आ रही है ना? और एक और स्पेलिंग बताती हूँ, चलो ये दिखती है आपको, दिख रहा है ना बेटा? ये किसकी हो गई, फिश की। फिश आपके
भी थर्ड पे कर देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने सेकंड पे लिखा है तो सेकंड पे बुक में तो है ही। ऐसे मैं एक बेटा आपको एक्सप्लेनेशन के लिए करवा रही हूँ, जरूरी नहीं है मैंने जैसे लेटर्स आपके लिखे हैं वैसे ही आपको बुक में भी वही जगह पे दे रखे हो। आपको ये चीज घर पे करना है। देखो पल्सेस की स्पेलिंग दिख रही है, कैसे जा रही है? डाउनवर्ड साइड जा रही है, PULSES, पल्सेस। तो क्या करोगे उसमें? सर्कल ऐसे ऐसे बनाओगे, दिख रहा है आपको? ये देखो दिख रहा है आप? चलो पल्सेस हो गया। अब आपको स्ट्रेट में एक और स्पेलिंग दिख रही है फिश की, FISH, फिश। इस पे भी हमने कर दिया सर्कल। ये इसको क्या बोलते हैं बेटा हम? पजल्स। तो पजल्स आपको क्या करने हैं? ऐसे ही आपको ढूंढ ढूंढ के कितने आइटम्स निकालने हैं फूड की? 8 आइटम्स। ठीक है, तो आप निकालो, नहीं आता है मैम आंसर आपको देंगे। ठीक है, चलो प्रोजेक्ट वर्क कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या दिया है। प्रोजेक्ट वर्क के पहले हम लाइफ स्किल का क्वेश्चन कर लेते हैं। लाइफ स्किल का क्वेश्चन क्या है बेटा? टिक राइट व्हाट यू शुड डू। उन्होंने पूछा है आपको, देखो बेटा 4 आपसे पॉइंट्स भी दे रखे हैं कि आप क्या करोगे अगर वहां आप होते। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो करते, आपको वहां पे आपको जो सही लगे उसके सामने क्या करना है? राइट मार्क पुट करना है। फर्स्ट वाला करते हैं, वाइप योर माउथ ऑन योर स्लीव। स्लीव से ऐसे करते हो तो ये क्या है हमारी? रॉन्ग ईटिंग हैबिट से। तो इसके सामने राइट मार्क करोगे आप? नहीं करोगे ना, क्योंकि ये रॉन्ग है। स्लीव से कोई ऐसे करता है? नहीं करता है ना बेटा, आप करते हो तो अब नहीं करना है हमें, क्योंकि ये आपकी गुड ईटिंग हैबिट्स में नहीं है। तो आपको माउथ टू वाइप करना है पर स्लीव से नहीं करना है। ठीक है, चलो इसके सामने कुछ भी नहीं आएगा। सेकंड वाला पढ़ते हैं, डू नॉट वेस्ट फूड। हमें फूड को वेस्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो ये राइट है, डू नॉट वेस्ट फूड राइट स्टेटमेंट है। तो ये कौन सा है? लाइफ स्किल का। लाइफ स्किल का आपका जो सेकंड पॉइंट दे रखा है उसके सामने राइट आएगा। ठीक है, सर्कल बना हुआ है, उसके अंदर आपको राइट करना है, क्योंकि हम भी यही करते, हम फूड को वेस्ट करते क्या? नहीं करते। तो ये राइट है। थर्ड इज सिट स्ट्रेट व्हाइल ईटिंग। हम जब खाना खाते हैं तो हमें कैसे बैठना चाहिए? स्ट्रेट। आप बैठते हो क्या स्ट्रेट? तो ये थर्ड वाला भी आपका राइट है। तो क्या करोगे इसके सामने राइट का? सिट स्ट्रेट व्हाइल ईटिंग। अब फोर्थ वाला है, च्यू योर फूड नॉइसली। नॉइसली मींस जोर जोर से। तो हमें जब खाते हैं तो खाना तो जोर जोर से आवाज आनी चाहिए क्या खाने में? नहीं आनी चाहिए। और आपकी नहीं आती है ना, क्योंकि आपको स्कूल में ये मैनर्स सिखाया है कि जब भी हम खाना खाएं हमें कैसे खाना चाहिए? नॉइसली खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए ना नॉइसली। तो ये आपके इसका फोर्थ आपको कुछ नहीं करना है, इसके सामने राइट भी मार्क नहीं करना है, रॉन्ग भी मार्क नहीं करना। बस हमें क्वेश्चन में बोला था जो स्टेटमेंट राइट है उसके सामने राइट मार्क करो, तो हमने कर दिया। आपकी टोटल 4 स्टेटमेंट में से 2 स्टेटमेंट राइट थी। कौन सी? सेकेंड वाली। क्या थी सेकेंड वाली? डू नॉट वेस्ट फूड। ठीक है, और थर्ड वाली सिट स्ट्रेट व्हाइल ईटिंग। जब हम बैठेंगे तो खाने के लिए तो हमें कैसे बैठना है? स्ट्रेट। ये हो गई आपका चैप्टर कंप्लीट। प्रोजेक्ट वर्क एक बार देख लेते हैं कि क्या करना है। ये आपको समझ में आया? दिखना है बेटा? सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट के सर्कल में आपको राइट मार्क करना है। प्रोजेक्ट वर्क इज मेक अ फूड चार्ट फॉर अ वीक, राइट व्हाट यू हैड फॉर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ये चीज आपको करनी है, प्रोजेक्ट है, आपको करना है। एक्टिविटी आपने करी सैंडविच वाली, मजे आए ना? वैसे ही आप ये वाली करोगे और भी मजे आएंगे। क्या करना है बेटा? आपको एक फूड चार्ट प्रिपेयर करना है पूरे वीक का। उसमें क्या क्या मील्स होने चाहिए? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ये 3 मील्स इंपॉर्टेंट है, तो इनका आपको कॉलम बनाना है। फिर एक डे का कॉलम बनाना है। मंडे आप क्या खाओगे ब्रेकफास्ट में? जैसे आपके एग्जाम्पल के लिए बुक में लिख रखा है मिल्क और फ्रूट्स।
ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? मिल्क और फ्रूट्स। आप जो खाते हो आप वो लिखो। ब्रेकफास्ट के कॉलम में मंडे को आप क्या खाओगे वो लिखो। लंच में आप क्या खाओगे? राइस, रसम, जो भी खाओगे आप वो लिखो। डिनर में क्या लोगे? इडली, सांभर, आपकी मम्मी जो बनाती है आपको वो लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका मंडे कंप्लीट हुआ। फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसे पूरे वीक का आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है फूड का। ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे वो लिखना है। लंच में आप क्या लोगे वो लिखना है। डिनर में क्या लोगे वो उसके कॉलम में। फिर क्या बोला है? आफ्टर यू हैव फिल्ड अप द चार्ट डू द फॉलोइंग। आप जब चार्ट कंप्लीट कर लो फिर आपको बोला है कि ये सारे जो नीचे लिखे पॉइंट्स वो आपको करने हैं। क्या करना है? फर्स्ट इज राइट द नेम ऑफ वन फूड आइटम दैट यू एट एवरी डे। आपको फिर क्या करना है कि जो चीज फूड आइटम जैसे मिल्क है तो मिल्क आपको डेली पीना है तो आपको किसका नाम लिखना होगा? मिल्क का, ठीक है। जो आप क्या करते हो? डेली, एवरीडे मीन्स डेली, पूरे 7 दिन में जो चीज आप रिपीट करोगे डेली वो आप उसका नाम लिखना है। फिर ड्रॉ अ स्टार इफ यू एट अ फ्रूट एवरी डे। आपको स्टार भी बनाना है अगर आप फ्रूट डेली खाते हो। फ्रूट अच्छी बात होती है ना, तो हमें डेली खाना है। फ्रूट हमारे लिए बहुत जरूरी है और अच्छे भी होते हैं। आपको पसंद है ना फ्रूट खाना? जिसको नहीं पसंद है आपको खाना चाहिए बेटा। और अगर आप डेली खा रहे हो फ्रूट को तो आपको क्या बनाना है? स्टार, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ 3 फूड आइटम्स दैट यू लाइक द मोस्ट। फिर क्या बोला है कि ऐसे 3 फूड आइटम्स लिखने हैं जो आपको बहुत पसंद हो, ठीक है। क्लियर है? 3 क्या बोला है? पहला, ऐसा फूड आइटम लिखना है जो आप डेली उसे ले रहे हो। दूसरा, फ्रूट अगर आप डेली खा रहे हो तो आपको क्या ड्रॉ करना है? स्टार, चंदा मामा, स्टार, ओके। फिर थर्ड इज ऐसे 3 फूड आइटम्स आपको बताना है जो आपको बहुत पसंद हो, ठीक है। फ्रूट पसंद है फ्रूट लिखो, वेजिटेबल्स में जो पसंद है वो लिखो, ओके। सैंडविच पसंद है सैंडविच लिखो। समझ में आ गया? तो हियर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, क्लोज होता है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं आ रही तो अच्छी बात है, आ रही है तो भी अच्छी बात है, ठीक है। आपको नोट करना है, मैम से पूछना है कि मैम ये क्वेश्चन समझा दो, आंसर नहीं लर्न हो रहा है या फिर चैप्टर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के